Hello everyone, welcome back to my channel Priyanshi Biology Basics. In this video, we will practice MCQ of chapter 5, the fundamental unit of life. And if you want to understand this chapter in detail, then you can watch my previous video. I have put the link in the description below. So let's start. First question is, a cell will swell up if A. The concentration of water molecule in the cell is higher than the concentration of water molecule in surrounding medium. B. The concentration of water molecule in surrounding medium is higher than the water molecule concentration in the cell. C. The concentration of water molecule is same in the cell as in the surrounding medium. And D. Concentration of water molecule does not matter. So the correct answer is B. The concentration of water molecule in surrounding medium is higher than water molecules concentration in the cell. तो ये कौन सा केस है? सेल स्वेल कब होएगा? जब बाहर का मीडियम हाइपोटोनिक होगा. हाइपोटोनिक का मतलब कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और सेल का वाटर पोटेंशियल कम है. तो नॉर्मली मूवमेंट कैसे होता है? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. तो इस केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर एंटर करेंगे और जिसकी वजह से सेल विल स्वेल अप. Now question 2. Chromosomes are made up of A. DNA, B. protein, C. DNA and protein, or D. RNA. And the correct answer is C. DNA and proteins. Question 3. Organelle other than nucleus containing DNA is. तो DNA न्यूक्लियस में तो मिलता ही है और कौन सी ऑर्गेनल है इनमें से जिसमें DNA मिलता है? A. Endoplasmic reticulum, B. Golgi apparatus, C. Mitochondria, or D. Lysosome. So the correct answer is mitochondria. Apart from mitochondria, क्लोरोप्लास्ट में भी DNA मिलता है. क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का DNA होता है. Fourth question. Silver nitrate solution is used to study A. ER, B. Golgi bodies, C. nucleus, or D. mitochondria. So the correct answer is Golgi body. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इस केस में क्या होता है? ब्लैक रिएक्शन होता है. ब्लैक रिएक्शन होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो गोल्जी बॉडीज़ है ना वो तो डार्कली स्टेन हो जाती है और जो बैकग्राउंड होता है वो लाइटली स्टेन रहता है. तो इस केस में हम डार्कली स्टेन गोल्जी बॉडीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द लाइटली स्टेन बैकग्राउंड. क्वेश्चन 5. Which is not a function of vacuole? A. Storage, B. Waste excretion, C. Locomotion, or D. Providing rigidity and turgidity to the cell. And the correct answer is locomotion. It is not the function of vacuole. Question 6. Amoeba acquire its food through which process? A. Exocytosis, B. Endocytosis, C. Plasmolysis, or D. Both A and B. And the correct answer is endocytosis. So endocytosis is a process by which any substance or any food material is taken inside the cell. And exocytosis is a process by which the substance or any material is released out of the cell. And the amoeba acquire its food means takes up the food inside itself through endocytosis process. Question 7. Cell organelle involved in forming complex sugar from the simple sugar. It is A. Endoplasmic reticulum, B. Ribosomes, C. Plastids, or D. Golgi apparatus. And the correct answer is D. Golgi apparatus is involved in forming the complex sugar from the simple sugars. Now question 8. Which of these cell wall is not made up of cellulose? A. Bacteria, B. Hydrilla, C. Mango tree, or D. Cactus. Usually जो plants होते हैं actually उनकी cell wall cellulose से बनी होती है. तो इनमें Hydrilla is a plant, Mango tree is a plant, and Cactus is a plant, right? But bacteria is not a plant. Therefore the answer is bacteria.
Question 9. Living cells were discovered by A. Robert Hooke, B. Purkinje, C. Leeuwenhoek, or D. Robert Brown. And the correct answer is Leeuwenhoek. Question 10. Lysosome arises from A. Endoplasmic reticulum, B. Nucleus, C. Golgi apparatus, or D. Mitochondria. And the correct answer is that lysosome arises from Golgi apparatus. Question 11. Organelle without a cell membrane. A. Ribosome, B. Golgi apparatus, C. Chloroplast और D. nucleus. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनल है जिनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता? दैट इज राइबोसोम. Question 12. The only organelle found in the prokaryotic cell. A. Mitochondria, B. Ribosome, C. Plastid और D. Lysosomes. तो इनमें से राइबोसोम इज द ऑर्गेनल जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है. माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड दे आर नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल. Question 13. Which cell organelle plays crucial role in detoxifying many poison and drug in the cell? A. Golgi apparatus, B. Lysosomes, C. SCR, smooth endoplasmic reticulum, or D. vacuole. And the correct answer is SCR. Smooth endoplasmic reticulum is responsible for detoxifying many poison and drugs in the cell. Question 14. Which of the following are covered by the single membrane? A. Mitochondria, B. vacuole, C. lysosome और D. plastid. तो अगर हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट. लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज वैक्यूल एंड लाइसोसोम. क्वेश्चन 15. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो पहला देखते हैं. ए. एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER. ये स्टेटमेंट ट्रू है. RER एंड SCR प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? बिकॉज RER प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और SCR लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. C. ER इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है. D. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. ये रॉन्ग है. न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है और न्यूक्लियोप्लाज्म यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूक्लियोलस. दैट इज nucleolus. So the correct answer is A, that enzymes packed in lysosomes are made through RER. Question 16. Find out the incorrect. अब इसमें हमें wrong statement find out करनी है. तो फर्स्ट देखते हैं. Golgi apparatus is involved in formation of lysosomes. ये ट्रू है. अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव DNA. हाँ, इन तीनों के पास DNA प्रेजेंट होता है इनका खुद का. देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स. ट्रू है. ये भी ट्रू है पहली स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है. थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड यूज टू जनरेट ATP. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अब लास्ट स्टेटमेंट है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल. तो प्रोटोप्लाज्म क्या इंक्लूड करता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. सो साइटोप्लाज्म इज नॉट अ प्रोटोप्लाज्म. सो द इनकरेक्ट सेंटेंस इज D. Question 17. Plasmolysis in a plant cell is A. Shrinkage of nucleoplasm, B. breakdown of plasma membrane in hypotonic medium, or C. shrinkage of cytoplasm in a hypertonic medium, or D. none of them. So the correct answer is C.
श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम का मतलब क्या है कि जो उसका वाटर पोटेंशियल है वो कम है, और उसमें जो सेल प्रेजेंट है उस हाइपरटोनिक मीडियम में, जो सराउंडिंग मीडियम हाइपरटोनिक है उसमें जो सेल है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो मतलब सेल से वाटर बाहर के मीडियम में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक करेगा, राइट। और श्रिंक के टाइम क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा ना वो श्रिंक होके एक साइड पर आ जाएगा। सो प्लाज्मोलिसिस इज श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। क्वेश्चन 18, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं। इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये ट्रू है, बिकॉज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही तो एक्सटेंशन से बनता है ना, तो वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह एक्ट करता है। दिस इज ट्रू, इट इज रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ट्रू। C, it can be the site for this energy generation। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज एनर्जी जनरेशन की मेन साइट माइटोकॉन्ड्रिया होती है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द डी क्या है, इट कैन बी साइट फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हाँ, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल SCR जो होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो RER होते हैं वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस में, तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। A, it helps in manufacture of proteins. B, it helps in manufacture of enzymes. C, it helps in manufacture of hormones. And D, in manufacture of starch molecule। तो इसमें से कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये ट्रू है। एंजाइम्स में भी हेल्प करते हैं, एंजाइम्स आर द प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स, राइट। एंजाइम्स की भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स। नो, हॉर्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये हेल्प नहीं करते हैं, सो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, that ribosome function is not the manufacture of starch molecule. So the correct answer is both C and D. Question 20, intercellular junction in plant cells are called A, middle lamella, B, plasmodesmata, C, microfibrils, or D, tonoplast। So intercellular junctions are the plasmodesmata। ये क्या करते हैं, दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं। देन कम्स क्वेश्चन 21, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद लाइजोसोम्स। इनमें से लाइजोसोम्स से कौन सी एसोसिएटेड नहीं है। पहली देखते हैं, लाइजोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल स्कैवेंजर्स एंड कॉल्ड एज सेल्यूलर हाउस कीपर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज लाइजोसोम्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करते हैं। लाइजोसोम्स में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो वो इनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है। सेकेंड, दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल्ड बैग्स बाउंड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ट्रू, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ऑल्सो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है। C, during starvation, lysosomes digest stored food content and even the cells to provide the necessary energy। ये भी ट्रू है, starvation के टाइम पे लाइजोसोम जो फूड कंटेंट स्टोर कर रखा होता है उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। D, these are sites for protein and lipid secretion। ये स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज प्रोटीन और लिपिड सिक्रेशंस की साइट लाइजोसोम्स नहीं है। इनकी प्रोटीन्स और लिपिड्स फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया। A,
They are the site for cellular respiration. They are the double membrane bound structures. They are the site of protein synthesis. Or D, they are also called as suicidal bags. So let's see. They are the site of cellular respiration because जो क्रैब साइकिल होता है वो मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया की. जो ईटीसी चैन होती है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की. सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो होता है. सेकेंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं, ये भी ट्रू है. सी, प्रोटीन सिंथेसिस की भी साइट है, इट्स ट्रू. और डी, सुसाइडल बैग्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज सुसाइडल बैग्स लाइजोसोम्स को कहते हैं. सो ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 23, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है. तो पहला है हमारा ए, न्यूक्लियस प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एंड हेंस मे एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये ट्रू है. माइटोकॉन्ड्रिया आर सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी ट्रू है. लाइजोसोम्स आर क्लोरोफिल कंटेनिंग बैग्स सराउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. तो इसमें देखा जाए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन की बात तो सही कही है, लेकिन क्लोरोफिल कंटेनिंग बैग्स की स्टेटमेंट रॉन्ग है. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. हम डी भी देख लेते हैं एक बार कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज पैलेट पार्टिकल्स, ये ट्रू है बिकॉज राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम जॉर्ज ई पैलेट and they are the protein factors of the cell. So the correct answer is C. This is a false statement. Question 24. What will be the fate of RBC when placed in hypertonic solution? तो इसमें कहा गया है कि अगर एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में ये हमारा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, एक सेकेंड, ये हमारा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने एक आरबीसी का सेल रखा है. तो अगर हम देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कम होता है. तो इसका मतलब जो सेल प्रेजेंट है अंदर, ये आरबीसी सेल है, तो ये जो सेल प्रेजेंट है यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा. तो मूवमेंट कैसे होगी, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ. तो जो वाटर है वो आरबीसी सेल से मीडियम की तरफ मूव करेगा, राइट. तो इस केस में जो आरबीसी का जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा. सो दैट्स द आंसर कि जब आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो व्हाट विल बी द फेट. सो इन दैट केस आरबीसी विल श्रिंक. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. The idea omnis cellula is cellula was given by A. Robert Brown, B. Rudolf Virchow, C. Purkinje or D. Sheldon. And the correct answer is Rudolf Virchow. उन्होंने ये आइडिया दिया था omnis cellula is cellula का. ये क्या कहता है, that new cells arise from pre-existing cells, कि जो नए सेल्स जो अराइज होते हैं वो पुराने सेल्स से ही अराइज होते हैं. तो ये वाला जो आइडिया था दैट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चू. If you have any doubt related to this chapter, then you can drop them in the comment section below. And don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.